Welcome to Gleaming Grammar. Be ahead of the curve. Hello, friends and learners. Welcome to the channel Gleaming Grammar. How are you all doing? I hope you must be great. मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे. If you haven't subscribed the channel yet, so before moving ahead, kindly subscribe the channel. Yes, चैनल को सब्सक्राइब ना भूलें और साथ में ही press the bell icon. Don't forget to hit the bell icon also. So dear friends, as you know that we are doing the classes of spell check. So I'm here with one more class of spelling quiz. Yes, this is our class number 3rd. तो अगर अभी तक आपने previous 2 classes नहीं देखी हैं, I'm just gonna put the link of both the classes at the end of the video और मैं description box में भी put कर दूंगी. Kindly do watch both the videos because in those 2 videos I have covered so many important words. तो मैं चाहती हूँ कि आप उन words को भी एक बार revise कर लें. So dear friends, are you ready to start the quiz? Without wasting much time, हम आज फटाफट से जितनी भी हमारी important spelling है of this class 3rd, we are just gonna do that, okay? So I hope you all are ready. One more thing I would like to suggest कि अगर आपको कई बार ऐसा होता है कि आप directly नहीं solve कर पाते and so you want to write, so just have a pen and a paper. It's good. कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लिख कर समझ आता है that which one is correct, right? So let's start with today's spell number first. तो आपको चूज करनी है the correct spelling of column, right? Let me tell you the meaning of column. Like if we draw the vertical lines, right? So we call them column. जब हम vertical lines draw करते हैं, so we say ना this is column 1, column 2, column 3, right? एंड द सेकेंड मीनिंग ऑफ कॉलम इज पिलर. पिलर जो होते हैं उनको भी हम कॉलम बोलते हैं, राइट? सो यू हैव टू चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ कॉलम. You can pause the video if you want to take more time. I'm just going to reveal the answer. So I hope you must have chosen one answer, whether it is Alpha, Bravo, Charlie or Delta, whether it is A, B, C or D. So the answer number D, Delta is the correct option, column. अब माइट बी कुछ लर्नर्स को और हमारे फ्रेंड्स को जोल्ट लगाओ दैट द प्रोनाउंसिएशन वाज कॉलम, देयर वाज नो साउंड ऑफ एन, देन हाउ डी और डेल्टा ऑप्शन इज करेक्ट. सो लेट मी टेल यू कि कॉलम में जो एन है वो कंप्लीटली साइलेंट होता है, राइट? द स्पेलिंग इज COLUMN, राइट? तो आप देख सकते हैं कि कॉलम में व्हेन वी आर प्रोनाउंसिंग इट देयर इज नो साउंड ऑफ एन. My friends, you know, examiner is going to give you the spellings जिसमें थोड़ा सा twist होगा. If the spelling is so easy, just look here, like choose, CH ch pronounce करता है, right? It is the formation. OOSE, choose, clear word है, right? There is no silent letter और the pronunciation is also pretty clear. So इस तरीके के words generally नहीं दिए जाते हैं, right? Where there is any twist, right? There is any dilemma, जिससे you know aspirants जो है वो थोड़े से confuse हो जाएं. तो आपको ये ध्यान रखना है कि जहां पर थोड़े से साइलेंट वर्ड्स हैं उन वर्ड्स की आप प्रैक्टिस थोड़ा ज़्यादा करिए. एंड आई हैव ऑल्सो ब्रॉट ऑल दीज वर्ड्स यू नो वेयर देयर इज अ ट्विस्ट इन द वर्ड्स. सो लेट्स मूव अहेड एंड सी योर वर्ड नंबर 2. नाउ यू हैव टू चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ फॉरेन. फॉरेन हम सभी जानते हैं, विदेश को हम कहते हैं फॉरेन, राइट? तो आपको फॉरेन की स्पेलिंग चूज करनी है, करेक्ट स्पेलिंग. एंड आई होप कि दिस टाइम अगर आपका आंसर लास्ट टाइम इनकरेक्ट था क्वेश्चन नंबर 1 में, तो दिस टाइम इट शुड बी करेक्ट, क्योंकि फॉरेन स्पेलिंग बहुत ही कॉमन है, एग्जाम में कई बार पूछी गई है. लेट मी टेल यू, फॉरेन की स्पेलिंग कई बार स्पेशली यू नो जनरल एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछी गई है बिकॉज इतनी डिफिकल्ट नहीं है. तो लेट मी टेल यू कि अगर आप PNB एस्पिरेंट हैं तो फॉरेन जो है वो एक मीडियम और यू कैन से यू नो एवरेज स्पेलिंग है, तो देयर आर हाई चांसेस कि ईजी स्पेलिंग ही आपसे पूछी जाएगी. So let's solve whether it is A, B, C or D. So if your answer is alpha, then let me tell you your answer is incorrect. और अगर आपने option number B choose किया है, then you got full mark, right? Foreign. चलिए मैं अब आपको इसका एक tactic भी बता देती हूँ, right? Rain. For हमें पता है FO is for, right? Like for है तो उसमें भी FO is like for. Fort होता है किला, उसमें भी FO is for, right? तो हमें पता है FO is for. राइट अब आपको स्पेलिंग लर्न करनी है रेन की. रेन, अब आपको लगेगा ये रेन यहाँ पे एक्चुअली फॉर रन है, बट जनरली अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं वर्ड को FO से यू नो सेग्रीगेट कर दूं तो इट विल बी प्रोनाउंस्ड एज रेन, राइट? यहाँ पे देखते हैं, लेट्स सी हियर REIGN, रेन. रेन का अपना एक सेपरेट मीनिंग होता है रूल, राइट?
like who is the ruling party here, whose rule is here, who is reigning here, right? reigning. तो REIGN यहाँ पे आप देख सकते हैं G जो है वो completely silent है, right? G is completely silent. ये रेन वर्ड भी एक्चुअली एग्जाम में पूछा गया है, दैट्स वाई आई जस्ट पुट इट हियर सेपरेटली. तो आप रेन की स्पेलिंग लर्न कर लीजिए और साथ में को रिलेट करके कि फॉर रेन में हम अब इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं कि फॉरेन में हमारा रूल नहीं रहता ना, डेफिनेटली somebody else is having the rule, right, on that land, on that place. तो फॉर में आपके साथ रूल वाली स्पेलिंग आपको लगानी है, एंड रूल वाली स्पेलिंग क्या होती है? REIGN. रेन आप RAIN मत पुट करिएगा, ओके? सो FOREIGN, फॉरेन. I hope it's clear. Now let's move ahead and see your spell number 3rd. And kindly drop your score also in the comment box so that I will get to know कि how much have you learned, okay? और हम कितना साथ साथ चल रहे हैं. So the third word is colleague. colleague क्या होते हैं? colleague the person who work with you, like अगर आप ऑफिस में हैं, आपके साथ में जो वर्क कर रहे हैं, so they are your colleague, right? तो आपको colleague की स्पेलिंग चूज करनी है. अगेन आई एम जस्ट टेलिंग यू कि डोंट गो ऑन द प्रोनाउंसिएशन, हमें वर्ड पता होना चाहिए स्पेलिंग कैसे उसको फॉर्म करना है. अगर आपने लाइक ट्वाइस थ्राइस इफ यू हैव रिटन दीज टाइप ऑफ वर्ड्स, तो हमें थोड़ा सा रिकॉल हो जाता है कि इतना डायरेक्टली वर्ड तो नहीं था, ए और ई जी भी था इस तरीके से, राइट? सो लुक हियर, कॉलीग. अगर नहीं आपको बिल्कुल भी पता या कोई ऐसा पर्सन है जिसने बहुत लॉन्ग टाइम से स्टडी को ब्रेक कर दिया है, तो जनरली वो क्या चूज कर देंगे? लाइक कॉलीग, alpha, right? But you can see that option A is completely incorrect. Our option number C, Charlie, is correct. चलिए, कॉलिग थोड़ा सा बड़ा वर्ड है, ओके? एंड आई एम हैविंग अ टेक्टिक ऑल्सो. मैं एक छोटी सी ट्रिक आपको बता देती हूँ जिससे माइट बी यू विल बी एबल टू लर्न इट. और अगर आपकी अपनी कोई पर्सनल ट्रिक है और अगर आप रोट लर्न कर सकते हैं, रट्टा मार सकते हैं, सो दैट इज गोना बी अमेजिंग. आप लर्न भी कर सकते हैं. सो लेट्स सी हियर. I just formed it by myself. If it is gonna help you, I will be really glad. Okay. So let's see. Colleague जो है, for an example, जैसे होता है ना, हम पॉलिथीन को पॉली बोलते हैं. Similarly, here आप कॉलेज को कॉली बोलते हैं, right? Being a dude, so you call college कॉली, okay? तो you are telling somebody, आप किसी को बता रहे हो कि कॉली में, कॉली मतलब कॉलेज, basically in your own slang language, right? कॉलेज में like कॉली, AGU, एजुकेशन बिना एडमिशन नहीं मिलता. लाइक इफ यू आर नॉट मैट्रिक्स पास, राइट? इफ यू आर नॉट 12th स्टैंडर्ड पास, देन यू आर नॉट गोना गेट द एडमिशन इन कॉलेज. तो आप उसको क्या समझा रहे हो? लाइक कॉली में, राइट, COLLE, योर ओन नेम गिवन फॉर कॉलेज, राइट? सो कॉली में AGU, एजुकेशन बिना एडमिशन नहीं मिलता. तो यू कैन सी हियर योर स्पेलिंग इज फॉर्म्ड. कॉली, COLLE, कॉली, AG, उसको आप बता रहे हो AGU, एजुकेशन बिना एडमिशन नहीं मिलता. ऑल राइट, तो आई होप इट इज क्लियर एंड इट्स गोना हेल्प यू. COLLEAGUE, इट इज द स्पेलिंग ऑफ कॉलीग, ओके? आप इसको ट्रिक से लर्न कर सकते हैं. नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी द स्पेल नंबर 4. सो चूज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, रेस्टोरेंट. अब कुछ इसको रेस्टोरेंट भी बोलते हैं, रेस्टोरेंट. तो उनको मैं पहले ही बता देती हूँ दैट रेस्टोरेंट इज कम्प्लीटली इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन. ना तो डी राइटिंग में आता है and neither it is in pronunciation nor it is in writing, okay? कहीं पे भी D sound नहीं आता है, ना written में and nor in that spoken English, right? Pronunciation इसका है restaurant, okay? But don't go again with the pronunciation because we are solving the spellings. आपको letter writing पे जाना है. So restaurant, what will be the correct spelling? Choose it fast. आई होप माई फ्रेंड्स आप स्पेल को इसमें काफ़ी ज़्यादा सीखने के लिए आपको मिल रहा है. सो डू लाइक द चैनल, ओके, सो दैट इट विल गिव अस काइंड ऑफ मोटिवेशन. सो लेट्स सी विच आंसर इज करेक्ट. देखो, अगर आपने प्रोनाउंसिएशन के बिहाफ पे चूज करा है रेस्टोरेंट, तो आपने चार्ली चूज किया होगा, विच इज इनकरेक्ट, राइट? अवर ऑप्शन नंबर अल्फा A इज करेक्ट, ओके? रेस्टोरेंट. चलिए, इसकी भी मेरे पास बहुत ईजी निमोनिक है विच इज गोना हेल्प यू. आपको रोट लर्न करने की जरूरत नहीं है, ओके? देखो, रेस्टोरेंट इज अ प्लेस वेयर वी गो एंड ईट, ओके? एक ईटिंग प्लेस होता है रेस्टोरेंट, हम सबको पता है, ओके? देयर इज अ डिफरेंस, बिग डिफरेंस बिटवीन रेस्टोरेंट एंड होटल, ओके? होटल में हम स्टे करते हैं, जाते हैं, वी कैन स्टे, राइट? वी कैन स्पेंड द नाइट्स, वी कैन स्पेंड द डेज. बट रेस्टोरेंट इज अ प्लेस वेयर वी गो, वी रिफ्रेश एंड वी जस्ट ईट समथिंग एंड कम बैक टू आवर होम. क्लियर? दिस इज रेस्टोरेंट, ईटिंग प्लेस. तो रेस्टोरेंट को हम निमोनिक से लर्न करते हैं. लेट्स सी हियर. रेस्टोरेंट में हम जाते हैं,
रेस्ट करते हैं, थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं, ऐसा नहीं हम वहाँ स्टे नहीं करते, सोते नहीं है, क्लियर, रेस्ट करते हैं सिर्फ बिकॉज ऑन द चेयर्स राइट और द कोजी कुशंस और सोफास। और क्या करते हैं, सो वी रेस्ट। और एंट हमें देखने के लिए बिल्कुल नहीं मिलती हैं। यू टेल मी, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में गए और वहाँ पे एंट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, डू यू थिंक सो कि कोई भी कस्टमर प्रेफर करेगा उस रेस्टोरेंट जाना अगेन? सो ऑफकोर्स नॉट। ओके, तो आपको लर्न करना है रेस्टोरेंट की स्पेलिंग कैसे। वी गो टू द रेस्टोरेंट, वी डू रेस्ट, हम वहाँ रेस्ट करते हैं, और AUR वाला और है, OR और नहीं, ओके। और एंड हमें देखने के लिए नहीं मिलती हैं। ऑल राइट, सो आई होप इट इज क्लियर। बहुत ही ईजी तरीके से हमने रेस्टोरेंट की लॉन्ग स्पेलिंग लर्न कर ली है। लेट्स गो अहेड एंड सी क्वेश्चन नंबर 5 and the word number 5th is vehicle. Vehicle, now vehicle we all know, it's a mode of transport. जो भी आप transport, mode of transport use करते हो, whether it is a bicycle, it's a bike, it's a scooty, car, four-wheeler, anything, even if it is a bus, okay, तो you can call it vehicle. तो आपको vehicle की spelling choose करनी है। Very easy, let me show you the answer. Delta is the answer, vehicle. Just see here, क्योंकि इसमें कुछ भी ट्विस्ट नहीं है, जैसा प्रोनाउंसिएशन है ऑलमोस्ट वैसा ही स्पेल किया गया है, राइट। फिर भी कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है ई और आई को स्विच करके, तो आपको ध्यान रखना है वी इज VEV, ओके, WEV। देखो इतना बड़ा कंफ्यूजन तो नहीं होगा कि आप व्हीकल की स्पेलिंग W से स्टार्ट कर दें, ओके, ये तो बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है, राइट। तो VEV हो गया, राइट, HI ही, CLE कल, ओके। तो आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो कि वी, ओके, हम जब भी जाते हैं व्हीकल से, तो हमारे फ्रेंड्स हमें रास्ते में मिलते हैं ऑन द वे, और हम उनसे क्या करते हैं, हाय हेलो करते हैं, HI हाय। व्हीकल पे हम हाय हेलो करते हैं, राइट। लाइक आई वाज गोइंग ऑन माय व्हीकल, मैं बाइक से जा रहा था, अपनी फोर व्हीलर्स कार से जा रहा था, एंड आई जस्ट सेड हाय। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, VE आएगा, देन HI, वी ही कल, ओके, और CLE तो कल अपने आप प्रोड्यूस कर रहा है साउंड, राइट। सो इट विल बी द डेल्टा विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप यू ऑल आर सॉल्विंग द आंसर्स, और आपके आंसर सारे करेक्ट हो रहे हैं। Now let's see the question number 6 and the spelling is of weather. Okay, weather की आपको spelling choose करनी है। I think आपको बहुत easily पता चल गया होगा, because generally when I give the these type of options, like both the options are correct, so वही options correct होते हैं। So yes, let me reveal the answer. Okay, let me spill the beans. Answer number D, delta is the correct answer. But let me explain you. I just put this word intentionally, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि दो वेदर होते हैं और दोनों का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि कई बार आ जाते हैं। सो WEATHER वेदर, ये वेदर होता है हाउ इज द वेदर, कैसा मौसम है, हाउ इज द वेदर, लाइक द वेदर इज सनी, वेदर इज क्लाउडी, है ना, जो चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। सो दैट इज वेदर, क्लियर। तो WEATHER वेदर, ये स्पेलिंग एग्जाम में कम पूछी जाती है, बिकॉज ये इजी स्पेलिंग है। WEATHER वेदर हमने काफी पढ़ी भी होती है। जो स्पेलिंग पूछी जाती है दैट इज द कंजंक्शन स्पेलिंग, ये WHETHER वेदर, ओके। दिस स्पेलिंग इज आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो जनरल एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। आई सॉ कि ये वेदर की स्पेलिंग कहीं कहीं पर पुट है, इवन नॉट वंस, ट्वाइस और थ्राइस आई हैव सीन इट। तो ये आपको लर्न कर लेना है, WHETHER वेदर, ओके। वेदर जो है इसका मतलब होता है लाइक वेदर को हम और के साथ यूज करते हैं, लाइक आर यू गोइंग टू, वेदर यू आर गोइंग देयर और नॉट, मतलब जा रहे हो या नहीं, वेदर, ओके। सो WHETHER वेदर, दोनों ही का प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्ट सेम है, बोथ आर होमोफोन्स, एग्जैक्ट सेम द प्रोनाउंसिएशन इज, बट द स्पेलिंग एंड द मीनिंग आर डिफरेंट, ओके। तो आपको फोकस करना है WHETHER वेदर पर। आई जस्ट पुट, क्योंकि मैं प्रोनाउंस करूंगी और आपको कंफ्यूजन हो जाता कि कौन सा वेदर है, सो दैट्स व्हाई आई पुट बोथ द वेदर्स, ओके। हियर लेट्स मूव अहेड एंड सी द वर्ड नंबर 7th. I hope you all are solving it. So word number 7th is recommend. All right, recommend. So doctors, हमें recommend करते हैं, हमारे जो loved ones होते हैं वो भी कई बार हमें suggest कर देते हैं। recommend का meaning होता है suggest. For an example, you went to the doctor, okay, you were suffering from fever and the doctor gave you the medicine, the basic thing, उसने आपको आपका टेस्ट किया और आपको मेडिसिन दे दी, this is the basic thing. In addition to that, डॉक्टर ने आपको recommend किया just take proper rest and don't eat oily or spicy thing, clear. तो उसने आपको recommend किया, suggest किया है, now he cannot make you do that, वो आपको force नहीं कर सकता हो। तो recommend means suggest करना, okay, recommend. So choose the correct spelling. इसको command से नहीं करना है, okay, it is END. Let me give you a hint. तो A तो eliminate हो गया quickly, है ना, you are left with B, C and D, okay, recommend.
Okay, so let me tell you the answer. The answer is Bravo B, recommend. Okay, option number B is correct. तो इसमें इतना कुछ confusion नहीं है, RE is rare. Okay, rare. Comment COMMEND. जो confusion छोटा सा slightly confusion रहता है वो रहता है M का. Okay, तो आप इसको डबल एम को रिकॉग्नाइज रखिए, लर्न रखिए कि डबल एम आएगा, रेकमेंड में डबल एम आएगा. MEND मैंड होता है तो आपको पता ही होगा, किसी चीज को मैंड करना, सुधारना. ओके, और रेकमेंड में डबल एम आएगा. तो यू कैन से आई वेंट टू द डॉक्टर एंड ही सेड, ही एडवाइज्ड मी, ही रेकमेंडेड मी टू टेक केयर ऑफ माई हेल्थ. ओके, सो MM, डबल M. ओके, more importance. Let's move ahead on word number 8. And the spell number 8, you have to choose of hygiene. Okay, hygiene आपको चूज करनी है. हेल्थ एंड हाइजीन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. हमें पर्सनल हाइजीन का भी ध्यान रखना चाहिए. इट इज सेड एवरी टाइम. सो हाइजीन अगेन, देखो द प्रॉब्लम इज विद स्पेलिंग्स दैट वी डू अ लॉट ऑफ चैटिंग एंड हम व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, इधर उधर भी हम सोशल मीडियाज पे टेक्स्ट करते रहते हैं ऑल टाइम, एंड वॉट एवर वी यूज़ देयर, तो हम वही वर्ड्स इंग्लिश में भी कई बार सेम, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, तो वो हम सेम वर्ड्स यूज़ करते हैं अपने एग्जामिनेशन में, एंड विच क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिलेमा टू अस. जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ हाई, तो हम व्हाट्सएप पे क्या लिख के भेजते हैं? हाई की स्पेलिंग HI, हाई, राइट. तो हमें लगेगा हाइजीन, तो HI तो हाई हो गया, और इधर इट विल बी A और D, क्योंकि HI हाई है ये तो मैं श्योर हूँ. ओके, आगे की स्पेलिंग या तो A होगी या D. तो माइट भी आप जय माता दी करके A और D में से कुछ एक लगा दें. बट लेट मी टेल यू, यहाँ हाइजीन में H के बाद I नहीं आता, विच यू नीड टू रिमेंबर. ओके, हाइजीन में H के बाद Y आता है. तो जिस ऑप्शन पे आपका फोकस था एक्चुअली अल्फा एंड डेल्टा, वो दोनों ही एलिमिनेट हो गए हैं, एंड यू आर लेफ्ट विद B एंड C. हाइजीन. ओके, आपको ध्यान रखना है, हाइजीन में H के बाद I नहीं आता. जो हाई आप व्हाट्सएप पे सेंड करते हैं, दैट इज नॉट इन हाइजीन. ओके, मीनिंग इसका क्लीनलीनेस होता है, एंड द ऑप्शन C इज करेक्ट, हाइजीन. आपको ध्यान रखना है हाइजीन में, बिकॉज लॉन्ग साउंड है हाइजीन. ओके, सो द स्पेलिंग विल बी HY हाई, GIENE, जीन. बेसिक इसमें जो कंफ्यूजन होता है वो HI और HY का ही होता है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन हाई का है, तो जनरली एस्पिरेंट जो है वो HI वाले को टिक कर देते हैं. द मीनिंग इज क्लीनलीनेस. नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी द वर्ड नंबर 8, and it is here on your screen. Pause the video if you are not getting sufficient time and just solve the answer. Beginning, very easy word. हम बहुत टाइम इसको दिन में सुनते हैं. Beginning, this is just the beginning. Beginning basically means the starting point. Okay, starting point, ये एक noun है. You have to choose the correct word, correct spelling. Again देखो, हम जब words को noun में form करते हैं, तो begin verb है and beginning is noun, तो हमें लगेगा BEGIN begin and ING beginning. तो आप अल्फा चूज करेंगे, बट इट इज इनकरेक्ट. ओके, बिगिनिंग में डबल एन आता है, राइट. बिगिनिंग में डबल एल आता है, सो द ब्रावो विल बी द करेक्ट स्पेलिंग, BEGINNING, बिगिनिंग. लेट मी टेल यू सम अदर वर्ड्स ऑल्सो. कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जब हम उनकी डिग्री चेंज करते हैं, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट एडजेक्टिव्स, तो उसमें भी हम लास्ट जो हमारा कॉन्सोनेंट होता है उसको डबल कर देते हैं. हियर ऑन द स्क्रीन यू कैन सी सो मैनी वर्ड्स. आप मुझे बताइए व्हाट्स द स्पेलिंग ऑफ हॉट? इट्स HOT. बट जब हम उसकी कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म करते हैं तो हम इसको डबल कर देते हैं, टी को, राइट, कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं. सो इट इज HOTTER, हॉटर. सिमिलरली बिग, BIG इज बिग, बट हम यहाँ पर भी डबल कर रहे हैं, राइट, बिगर. ये मैंने रूल्स भी एक्सप्लेन किए हैं इन माय वीडियो ऑफ एडजेक्टिव्स. ओके, इफ यू हैवंट वॉच्ड इट, आप उसको भी देख सकते हैं. इट इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द चैनल. सिमिलरली थिनर, फैटर. तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि बिगिन में सिंगल एन है, बट बिगिनिंग में डबल एन है. ओके, इट इज डबल एन. नाउ लेट्स मूव अहेड एंड सी द लास्ट वर्ड ऑफ दिस वीडियो, वर्ड नंबर 10th, एंड द वर्ड इज amateur. ओके, इट इज एक्चुअली amateur also and amateur also. तो आपको करेक्ट वर्ड मीनिंग चूज करना है. मीनिंग इसका है बेसिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एन अ पर्सन हु इज नॉन प्रोफेशनल. ओके, जो कहते हैं ना कि वॉलेंटरीली काम कर रहा है, शौक के तौर पे काम कर रहा है. ओके, पेड बेसिस पे नहीं है बेसिकली. एमेच्योर. सो
स्पेलिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट है, आई अंडरस्टैंड, बट ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, दैट्स वाई आई पुट इट एट द एंड. ओके, वी से ना लास्ट बट नॉट द लीस्ट. सो सिमिलरली ये लास्ट वर्ड है बट इंपॉर्टेंट है, यू कैन लर्न इट. ओके, लर्न नहीं तो एक बार देख लीजिए, जस्ट हैव अ ग्लिम्स, क्या पता एग्जाम में आ जाए एंड यू विल गेट द करेक्ट आंसर. सो amateur, द करेक्ट स्पेलिंग इज डी. ओके, amateur बेसिकली इसका अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन है. एंड if you talk about British pronunciation, so it is amateur. तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसको रादर देन amateur की जगह amateur लर्न करिए. ओके, amateur. तो उससे आपको टी साउंड समझ में आ जाएगा, amateur. ओके, नॉन प्रोफेशनल है, AMETEUR. ओके, amateur. सो ए से ए हो गया, ये तो आपको क्लियर है, राइट. MA हो गया, MUH, म हल्का सा एच साउंड है नहीं, बट जस्ट इन प्रोनाउंसिएशन. एंड यहाँ पे ई साइलेंट है एंड यू का साउंड आ रहा है, TUR भी साइलेंट है, amateur. ओके, अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में आर का साउंड आता है, amateur. तो आप इसको जैसे चाहे वैसे लर्न कर सकते हैं. amateur करना चाहते हैं तो amateur कर सकते हैं, amateur लर्न करना चाहते हैं तो इस तरीके से लर्न कर सकते हैं. बट द डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन एंड द स्पेलिंग इज AMATEUR and the meaning is non-professional, a person who is non-professional. So today in this video we have done 10 words, okay, important words. I'm just bringing one more video in the next week. I hope you all are watching the videos constantly and making your preparation better to best. Okay, every day you are learning something new और आपकी preparation day by day अच्छी हो रही है. All the best wishes from my side. Keep on learning, keep on doing practice. Even if you are doing practice or studying even just for 10 minutes in a day, it is enough, because we say na that even a little drop can make a big difference. So thank you so much for watching the video and giving your time. And again, if you haven't subscribed the channel, so just kindly subscribe the channel, hit the bell icon, and here I have put the videos of previous quiz also. You can click on the link and watch the videos. Thank you so much and have a nice day.